بادلوں اور سورج میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ بادلوں کے باعث سورج کی تپش میں کمی، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ صبح کے وقت شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 163 ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ زین علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اجے بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور کے افق پر جو ہے وہ آج ہلکے کالے بادل جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان ہلکے کالے بادل ہونے کے باعث شہر آج جو ہے وہ سورج کی تپش ہے اس میں کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ان ہلکے کالے بادل ہونے کے باعث سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ دوسری طرف کالے بادل تو شہر لاہور کے اوپر پر موجود ہیں، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ تاحال بارش کی جو پیشگوئی ہے وہ نہیں کی گئی۔ اگر بات کر لیجیے کچھ آج دن بھر شہر لاہور کے رہنے والے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 22 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 67% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ شہر لاہور میں اس وقت 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ دوسری طرف اگر بات کر لی جائے کچھ فضائی آلودگی کی، جس میں جو ہے وہ گزشتہ روز کی نسبت آج جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آج شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 163 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی زین علی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ آگے بڑھیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں رمضان المبارک میں چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست، صوبائی حکومت نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کی استدعا منظور کر لی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ رمضان المبارک میں چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عدالت حکومت کو اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق رولز پر عمل درآمد کا حکم جاری کرے۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ رمضان تقریباً گزر چکا ہے، حکومت رولز پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی؟ صوبائی حکومت کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کی استدعا منظور کر لی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ دوسری جانب میو کے بعد جناح اسپتال کی بھی ابتر صورتحال۔ وزیر اعلیٰ کی جناح اسپتال آمد، مریضوں کی شکایات پر ایکشن۔ ایم ایس ڈاکٹر کاشف جہانگیر اور پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر اصغر نقی کو عہدے سے چھوڑنے کا حکم۔ اے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر محمد اقبال کو ایم ایس کا اضافی چارج دے دیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اسپتال ایسے چلتے ہیں؟ مجھے آپ کی پرفارمنس درست نہیں لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایم ایس کی سرزنش کر دی۔ مزید احوال جانتے ہیں سجاد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اطلاع دیے بغیر جناح ہاسپٹل پہنچ گئیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور نواز شریف کے معالج ڈاکٹر عدنان بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے دورے کے دوران طبی سہولیات بارے دریافت کیا تو مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ انڈور اور ایمرجنسی میں ادویات کی قلت پر مریم نواز ایم ایس پر برہم ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بیسمنٹ میں موجود میڈیسن سٹور میں ادویات کی دستیابی بارے بریفنگ لی۔ شکایات پر ایم ایس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایس صاحب، یہ کیا ہے؟ آپ جعلی اور غلط رپورٹس دیتے ہیں۔ مجھے آپ کی پرفارمنس درست نہیں لگی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا ہاسپٹل ایسے چلتے ہیں؟ جو کام نہیں کرتا اسے نوکری پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ 2 ہفتوں سے داخل ہیں، ادویات ملتی ہیں اور نہ ہی ٹیسٹ فری ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ادویات موجود ہیں تو مریضوں کو کیوں میسر نہیں؟ جاتے جاتے ایم ایس ڈاکٹر کاشف جہانگیر کو ریلیو کر کے ڈاکٹر اقبال گجر کو عارضی چارج دے دیا گیا اور پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہاسپٹل پروفیسر اصغر نقی کو عہدہ چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ کیمرہ مین زہیب اور ساتھی رپورٹر حسن رضا کے ساتھ سجاد کاظمی، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرکاری اسپتالوں کے واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم۔ مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایات۔ سرکاری اسپتالوں میں دستیاب میڈیسن لسٹ آویزہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब मेडिसिन लिस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मीटिंग में अहम फैसले। सरकारी अस्पतालों में मरियम नवाज शिकायत काउंटर फ़ाल और नुमाया करने का हुक्म दिया गया। मरीजों को कॉल करके फीडबैक भी लिया जाएगा। वेटिंग रूम में तीमारदारों के लिए कुर्सियां और बेंच फराहम करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज का रोजाना सरकारी अस्पतालों का विजिट करने का हुक्म। चेक लिस्ट रिपोर्ट की असूली मंजूरी भी दे दी। अस्पतालों की हकीकी सूरत हाल जानने के लिए एक से जायद इदारे चेक लिस्ट तैयार करेंगे। पार्किंग, कैफेटेरिया और व्हील चेयर्स की दस्तयाबी भी रोजाना चेक होगी। इन्फेक्शन का सबब बनने वाले बोसीदा पर्दे हटाकर ब्लाइंडर लगाने का फैसला किया गया है। सरकारी अस्पतालों की लैब की क्वालिटी ऑडिट पर इत्तेफाक। हेल्थ केयर कमीशन को टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से वज़ीर आज़म से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशत गर्दी का शिकार हैं और कौमी इत्तिफाक राय मौजूद नहीं। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्की मसाइल के हल के लिए एक पेज पर आना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से गवर्नर हाउस में जियालों को इफ्तार डिनर दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों से खिताब में कहा, दहशत गर्दी मुल्क को लपेट में ले रही है। इस नासूर से जान छुड़वाने के लिए तमाम जमातों को सियासी इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अपोजिशन कौमी एजेंडे के बजाय सिर्फ अपने रहनुमा की रिहाई का जाती मुतालबा रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म से सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग दोबारा बुलाने का मुतालबा कर दिया। सब जानते हैं, देख रहे हो कि पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दहशत गर्दी की सूरत में बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक नफरत की जो सियासत अरूज पर है, हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। गवर्नर हाउस में दिया जाने वाला इफ्तार डिनर बदनज़मी का शिकार हो गया। जियाले आपे से बाहर हो गए और पुलिस एहलकारों की पिटाई कर डाली। तकरीब इस वक्त बदनज़मी का शिकार हुई जब जियालों को अपने कायद बिलावल भुट्टो को देखने के लिए लॉन में जाने की इजाजत न दी गई। डिनर के दौरान जियाले बिलावल भुट्टो के सामने पंजाब की कयादत के खिलाफ नारेबाजी और पार्टी कयादत को तब्दील करने का मुतालबा करते रहे। इससे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का अचानक दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर शहर का अचानक दौरा। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना किया। सड़कों पर सफाई की सूरत हाल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हरबंसपुरा में खड़े फील्ड हॉस्पिटल का भी दौरा किया। फील्ड हॉस्पिटल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात के साथ साथ अद्वियात का स्टॉक और मेयार भी चेक किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों से फील्ड हॉस्पिटल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब ने कई अहम बिलों की तौसीक कर दी। तरमीम शुदा कवानीन के तहत देहात में बनी हाउसिंग स्कीमों, गैर मनकूला जायदाद से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से NOC लेना होगा, जबकि भीख मंगवाने वाले गिरोह के सरगना को 10 बरस कैद, 20 लाख जुर्माना होगा। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा कई बिलों की तौसीक कर दी। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के तहत देहात में बनी हाउसिंग स्कीमों और गैर मनकूला जायदाद से टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। शहरी इलाकों में भी टैक्स के दायराकार को वसी किया जाएगा। मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट के तहत ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों को महकमा ट्रांसपोर्ट से NOC लेना होगा। बगैर इजाजत चलने वाली ऑनलाइन टैक्सी कंपनी या ड्राइवर्स को जुर्माने होंगे और लाइसेंस मुअत्तल किए जा सकेंगे। दी पंजाब वेगरेंसी तरमीमी एक्ट के तहत भीख नाकाबिले जमानत जुर्म करार। भीख मंगवाने वाले सरगना को 10 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट के तहत फोरेंसिक मवाद की जांच और माहिराना राय देने का अमल फुल प्रूफ बनाया जाएगा। नोटरी तरमीमी एक्ट के तहत सदारती ऑर्डिनेंस को बाकायदा कानून की शक्ल दी जाएगी। कानूनी दस्तावेजात में जालसाजी रोकने के लिए नोटरीज विफाकी तर्ज पर पंजाब में भी काम करेंगी। नए कानून के तहत पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी कायम। मॉडल बाजार मैनेजिंग कंपनी को नई अथॉरिटी में जम कर दिया गया। अथॉरिटी के
जरिए सहूलत बाजारों का दायरा कार वसी किया जाएगा। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मज़कूरा बिल एक्ट बन गए हैं जो फौरी नाफिजुल अमल होंगे, जबकि एक और कानून के तहत हुकूमत पंजाब छोटे प्रोजेक्ट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू करवा सकेगी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लाहौर में एक और ट्रैफिक हादसे से एक शख्स जाँ बहक। ट्रैफिक हादसा DHA फेज़ 8 बरकी रोड पर पेश आया। तेज़ रफ्तार ट्रक ने पैदल रोड अबूर करते शख्स को कुचल दिया। शहरी मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 70 साल असलम उमर के नाम से हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन अली, हादसे के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक और शहरी जो है वो ट्रैफिक का हादसे के बाद जो है वो जाम बहक हो चुका है और ट्रैफिक हादसा जो है वो DHA फेज़ 8 बरकी रोड पर जो है वो पेश आया कि एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने जो है पैदल रोड क्रॉस करते मुसाफिर को जो है वो कुचल दिया है, जबकि जिसके बाद शहरी जो है वो मौके पर ही जाम बहक हो गया। रेस्क्यू की जानिब से जो है वो ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश जो है पुलिस के हवाले कर दी गई है, जबकि जाम बहक शख्स की जो शनाख्त है वो 70 साल असलम उमर के नाम से हुई है। जी ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी ना सकी। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये किलो बरकरार। मार्केट में साफ़ी गोश्त मनमाने दामों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत में भी 264 रुपये बरकरार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। मसनूआत के सरकारी नफनामे जारी किए गए, उसमें ब्रायलर की कीमतें जो है वो अब भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, क्योंकि सरकारी लिस्ट में जो कीमत मुकर्रर की गई है 595 रुपये फी किलो ब्रायलर गोश्त की है। तहम मार्केट में ब्रायलर गोश्त जो है वो 760 रुपये फी किलो तक साफी गोश्त के नाम पर फरोख्त किया जा रहा है। और रमजानुल मुबारक में जो सरकारी नफनामे का इजरा है उसमें 595 पर कीमत को बरकरार रखा गया है, लेकिन मार्केट में इन कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383 रुपये मुकर्रर किया गया और यहीं से जो है वो सारी खराबी शुरू होती है, क्योंकि 383 के बरक 450 से 440 रुपए तक ये फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का जो है मुकर्रर किया गया था। और इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपये है, लेकिन ये सिर्फ सरकारी रेट तक महदूद है। मार्केट में 460 से 480 रुपये फी किलो तक जिंदा ब्रायलर की सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद शहरियों को महंगा ब्रायलर जो है वो खरीदना पड़ रहा है। दुकानदारों की जानिब से मौका इख्तियार किया जा रहा है कि जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई शहर को की जा रही है वो जायद नरखों पर की जा रही है। जो गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है सरकारी रेट जिसमें वो कम है, जिसकी वजह से तमाम मामला बिगड़ रहे हैं। और इस हवाले से जो शहरियों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि रमजान मुबारक के तमाम अय्याम में सस्ता ब्रायलर जो है वो दस्तयाब नहीं हो सका और इंतजामिया इस हवाले से इक़दाम करती हुई भी दिखाई नहीं दे रही कि सस्ता ब्रायलर जो है वो शहरियों को ये दस्तयाबी जो है इसकी यकीनी बनाई जा सके। अंडों की कीमतों पर बात की जाए तो 264 रुपये फी दर्जन अंडों की कीमत मुकर्रर की गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,800 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे।